ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور رکن صوبائی اسمبلی پنجاب سارہ احمد نے نیشنل چائلڈ پروٹیکشن اسٹریٹجی کے حوالے سے منعقدہ مشاورتی اجلاس میں خصوصی شرکت کی۔ مشاورتی اجلاس کا انعقاد وزارت انسانی حقوق اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اشتراک سے کیا گیا، جس میں مختلف وفاقی اور صوبائی محکموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سارہ احمد نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے انٹرنیشنل کنونشن آن دی رائٹس آف چائلڈ کی توثیق کر رکھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں پاکستان میں پہلی مرتبہ جامع چائلڈ پروٹیکشن پالیسی منظور کی گئی ہے۔ سارہ احمد کا کہنا تھا کہ بچوں کے حقوق کے مؤثر تحفظ کے لیے جامع نیشنل چائلڈ پروٹیکشن اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے، جس میں بچوں کی فروخت، بدسلوکی اور جنسی استحصال کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی شراکت داری سے تیار ہونے والی یہ اسٹریٹجی بچوں کے تحفظ میں سنگ میل ثابت ہوگی۔ دوسری جانب وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کی زیر صدارت پنجاب اسپیشل پلاننگ اتھارٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سیکریٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں، اسپیشل سیکریٹری ارشد بیگ اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب اسپیشل پلاننگ اتھارٹی نے شرکت کی اور اتھارٹی کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ پنجاب اسپیشل پلاننگ اتھارٹی کا قیام صوبے میں منظم ٹاؤن پلاننگ کی جانب ایک اہم اور تاریخی قدم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے 40 اضلاع کی ڈیجیٹل ماسٹر پلاننگ کا کام مکمل کر لیا گیا، جو مریم نواز حکومت کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ ذیشان رفیق کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے ذریعے مقامی حکومتوں کو مؤثر سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ فیلڈ فارمیشنز کی استعداد کار بڑھانے کے لیے خصوصی تربیتی پروگرامز شروع کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر تحصیل اور ضلع کا ماسٹر پلان متعلقہ علاقوں میں نمایاں طور پر آویزہ کیا جائے گا، جبکہ شاہراہوں پر بھی QR کوڈ کے ساتھ ماسٹر پلاننگ کے بورڈ نصب کیے جائیں گے تاکہ شہری بآسانی معلومات حاصل کر سکیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے میونسپل سروسز کی فراہمی جانچنے کے لیے تحصیل صدر کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور شاہد عباس کاٹیا، اسسٹنٹ کمشنر صدر سید کیسر عباس اور دیگر متعلقہ افسران بھی ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے کرباٹ تحصیل صدر میں صفائی ستھرائی، نکاسی آب اور مین ہول کورز کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر نے میونسپل سروسز اور جاری فیلڈ سرگرمیوں پر ڈپٹی کمشنر لاہور کو بریفنگ دی۔ دورے کے دوران سیوریج لائنوں کی صفائی، پیچ ورک اور کھلے مین ہولز کو کور کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ واسا حکام نے سیوریج لائنوں اور مین ہولز کی ڈی سلیٹنگ سے متعلق پیش رفت پر ڈپٹی کمشنر لاہور کو بریفنگ دی۔ شاہراہوں اور گلیوں میں موجود کھلے مین ہولز پر سخت نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر لاہور نے فوری طور پر انہیں ڈھانپنے کی ہدایات جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے ہدایت کی کہ ٹوٹے ہوئے مین ہول کورز کو فی الفور تبدیل کر کے نئے کورز لگائے جائیں، جبکہ سڑکوں اور گلیوں میں سیوریج لائنوں کی صفائی اور مین ہول ڈھکنوں کی موجودگی یقینی بنائی جائے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے LWMC کو ہدایت کی کہ گلی محلوں سے گھر گھر کوڑا اکٹھا کرنے کا عمل مزید تیز کیا جائے، جبکہ شاہراہوں اور گلیوں میں موجود تعمیراتی ملبہ فوری طور پر ہٹایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی مرمت اور پیچ ورک کا کام ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں سرکاری اداروں کی کارکردگی جانچنے کے لیے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا۔ اس جدید نظام کے تحت کھلے مین ہول، مہنگائی، آوارہ کتوں، وال چاکنگ، تجاوزات، ابلتے نالوں، قبرستانوں، ریڑھی بازاروں اور تمام سرکاری اداروں کے افسران اور اہلکاروں کی کارکردگی کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی جائے گی۔ پنجاب میں پہلی بار ورچوئل وال قائم کر دی گئی، جس کے ذریعے وزیر اعلیٰ ہر اسپتال، تعلیمی ادارے اور سرکاری دفتر کی براہ راست صورتحال دیکھ سکیں گی۔ ورچوئل وال کے ذریعے افسران اور اہلکاروں کی حاضری، کارکردگی اور عوامی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا جائے گا۔ کھلے مین ہول، شہری خطرات اور تجاوزات اب حکومت پنجاب کی نظروں سے اوجھل نہیں رہیں گے۔ پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ میں 22 اہم پرفارمنس انڈیکیٹرز کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے گی، جبکہ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کی کارکردگی جانچنے کے لیے پہلا KPI ڈیش بورڈ فعال کر دیا گیا۔ نئے نظام کے تحت آٹا، روٹی اور اشیاء خورونوش کی قیمتوں، آوارہ کتوں سے بچوں کے تحفظ کی مہم، وال چاکنگ کے خلاف کارروائی، ستھرا پنجاب پروگرام، ڈرینیج اور سیوریج سسٹم، پارکوں اور قبرستانوں کی حالت اور ریڑھی بازاروں میں اشیاء خورونوش کی دستیابی اور نرخ کی بھی مسلسل نگرانی کی جائے گی۔
पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में गैर मयारी और सुस्त रवि से काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा जो मुकर्ररा वक्त में मयारी काम मुकम्मल करने में नाकाम रहे। यह फैसला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक एक खुसूसी इजलास में किया गया, जिसकी सदारत सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन वेंगल ने की। इजलास में गुजरात, सरगोदा, डेरा गाजी खान, झंग और चहलम में जारी तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। नूरुल अमीन वेंगल ने तमाम अजला में तरक्याती मनसूबों को मयारी और बर्क रफ्तार अंदाज में मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए और कहा कि तमाम अजला के दरमियान मयार और रफ्तार के हवाले से मुकाबला होगा। उन्होंने ऐलान किया कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को तारीफी असनाद दी जाएंगी। इजलास में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने हिदायत की कि तमाम अमला और साइट अफसरान सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। पंजाब में कब्जा माफिया, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों और जाली प्लॉट्स और फाइल सिस्टम के खिलाफ कड़ी कानून साजी की तैयारी शुरू कर दी गई। इस हवाले से वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की जेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें SMBR नबील जावेद, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन वेंगल, DGLDA पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सूबा भर में हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी से मुतालिक जदीद सॉफ्टवेयर तैयार करेगी, जबकि डिजिटल रेवेन्यू रिकॉर्ड, NOCs की फराहमी और दीगर उमूर को 90 रोज में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तशहीर रोकने, प्रॉपर्टी डीलर्स की रजिस्ट्रेशन और कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के अकाउंट्स और असासाजात मुंजमद करने की सिफारिशात भी पेश की गईं। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने वाजे किया कि सैलाबी पानी की गुजरगाहों पर आबादकारी की इजाजत नहीं दी जाएगी और मंजूर शुदा अराजी से कई गुना ज्यादा प्लॉट्स या फाइलें फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि एक साथ की अदायगी के बाद जगह तब्दील करने वाली हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। चीन के जदीद ज़री मशीनरी बनाने वाले एक वफ़द ने एग्रीकल्चर हाउस लाहौर का दौरा किया और वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली से अहम मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब में जदीद ज़री मशीनरी की तैयारी के लिए प्लांट्स लगाने और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सूबे में फार्म मैकेनाइजेशन के लिए अमली इकदाम उठाए जा रहे हैं और चीन की ज़री मशीनरी बनाने वाली कंपनियों को खुसूसी सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में पंजाब की ज़राअत का हिस्सा 70% है, जबकि गुज़श्ता 2 बरसों में ज़री मैकेनाइजेशन पर 35 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। काश्तकारों को जदीद ज़री मशीनरी 60% सब्सिडी पर फराहम की जा रही है। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली ने कहा कि चीन जदीद ज़री टेक्नोलॉजी में आलमी सतह पर कायद है और पंजाब में ज़राअत से मुतल्लिका इंडस्ट्री का वसी स्कोप मौजूद है। चीनी वफ़द ने बताया कि वो पंजाब में जदीद तरीन ज़री मशीनरी तैयार करने के प्लांट्स लगाने का इरादा रखते हैं। उनकी कंपनी की मशीनरी 25 ममालिक में बरामद की जाती है और मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली मशीनरी काश्तकारों की कुव्वत ख़रीद और मकामी ज़रूरियात के मुताबिक होगी। डायरेक्टर जनरल काउंटर नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ब्रिगेडियर मजहर इकबाल ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा किया, जहां उन्होंने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। मुलाकात में सूबा भर से मुंशियात फरोशी के सदबाब समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। DG CNF के हमरा डिप्टी डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट कर्नल सरफराज खान, डायरेक्टर आसिफ शफी, डिप्टी डायरेक्टर मेजर फुरकान राजा और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब मोहम्मद अली नेकुकारा और AIG ऑपरेशन जाहिद नवाज मरवत भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान IG पंजाब और DG CNF ने मुंशियात फरोशी के सदबाब के लिए दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया। मुंशियात के बड़े डीलर्स की सरकोबी और ड्रग सप्लाई लाइन तोड़ने के लिए मुश्तरका लाहे अमल तश्कील देने पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गईं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पंजाब पुलिस और काउंटर नारकोटिक्स फोर्स मुंशियात के स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए इंफॉर्मेशन और डेटा शेयरिंग करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम RPOs और DPOs ड्रग डीलर के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए CNF के साथ मुश्तरका टारगेट्स और ऑपरेशनल स्ट्रेटजी तरतीब देंगे। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से पाकिस्तान में मॉरिशस के हाई कमिश्नर ने उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा तिजारत और माशी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दोनों फरीकैन ने इंडस्ट्री, ज़राअत, सियाहत,
टेक्निकल एजुकेशन, टेक्सटाइल और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पंजाब में इस वक्त सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है और गैर मुल्की सरमायाकारों को खुसूसी मराद दी जा रही हैं। उन्होंने मॉरिशस के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत देते हुए बताया कि टेक्सटाइल के फ़रोग के लिए कायद आज़म बिजनेस पार्क शेखोपुरा में गारमेंट सिटी कायम किया गया है। सूबाई वज़ीर ने SME सेक्टर के फ़रोग के लिए बिलासूद कर्ज़ों, हुनरमंद अफराद क़ुव्वत की तैयारी और जॉब पोर्टल के क़याम से भी आगाह किया। मॉरिशस के हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान और मॉरिशस के दरमियान बेहतरीन सिफारती ताल्लुकात मौजूद हैं, तहम दो तरफ़ा माशी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने पंजाब की हैंडीक्राफ्ट्स और SME प्रोग्राम्स को सराहते हुए मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारतीय वजीर आला के मुस्लिम खातून का हिजाब उतारने के खिलाफ आरिफ वाला में म्यूनसिपल कमेटी और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। शुरका की जानिब से भारतीय वजीर आला के गैर इंसानी रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। आरिफ वाला में बल्दिया और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी रैली में सरकारी अमला और सिविल सोसाइटी ने भारतीय वजीर आला के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया। शुरका के बैनर्स पर मजम्मती नारे भी दर्ज थे। शुरका ने नारेबाजी भी की और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि ऐसे इंसान को फौरी तौर पर वजीर आला के मनसब से हटाया जाए जो इंसानी और अखलाकी हुदूद की पामाली करता है। मुल्तान में भारतीय सूबे बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की तरफ से मुस्लिम खातून का ज़बरदस्ती निकाब खींचने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ज़िले यमन कमेटी और सिविल सोसाइटी की जानिब से भारतीय वज़ीर आला के खिलाफ पुरजोर मजम्मती रैली निकाली गई। ज़िला कौंसिल ताचौक कचहरी तक रैली की क़यादत कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन टीम उमर फारूक भट्टी ने की। रैली में अमन कमेटी अरकान समेत दीगर ने ज़बरदस्ती निकाब खींचने पर भरपूर नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की ख़वातीन की भरपूर शिरकत और नारेबाजी भारतीय सूबे बिहार के वज़ीर आला के मुस्ताफ़ी होने और इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हिजाब और निकाब पर हमला इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। उमर फारूक भट्टी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खातून के साथ बदसलूकी और तज़हीक पर शदीद तशवीश है। सेकुलर स्टेट कहलाने वाले हिंदुस्तान ने बेहयाई का मुजाहरा किया। मिर्ज़ा अरशद कादरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंडिया मार्का हक में पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद बौखलाहट का शिकार है। मुस्लिम खातून की बेतौकीरी पर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद है। उम्मत मुस्लिमा किसी भी खातून की बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आलमी तंजीमें नोटिस लें। सियालकोट में भारतीय वजीर आला की जानिब से मुस्लिम खातून का हिजाब उतारने के खिलाफ कचहरी चौक में तमाम मज़ाहिब मेंबरान और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। शुरका की जानिब से भारतीय वजीर आला के गैर इंसानी रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। एहतजाजी रैली में भारतीय वजीर आला के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया गया। शुरका ने नारेबाजी की और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि ऐसे शख्स को फौरी तौर पर वजीर आला के मनसब से हटाया जाए जो इंसानी और अखलाकी हुदूद की पामाली करता है। ओकाड़ा में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज ओकाड़ा की तालिबात ने हिजाब की मुबैना बेहरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज भारत की रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से हिजाब की मुबैना बेहरमती के वाक़े के खिलाफ किया गया। तालिबात के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में एक खातून के साथ नामुनासिब रवैया दिखाया गया है, जिससे दुनिया भर में मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। तालिबात का कहना है कि वीडियो में खातून वाज़े तौर पर बेचैनी का शिकार नजर आती है, जबकि बिहार के वज़ीर आला की जानिब से खातून के हिजाब को चेहरे से नीचे की जानिब खींचना इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। मुजाहिरीन ने इस वाक़े को ख़वातीन के एहतराम और मजहबी आज़ादी पर खुला हमला करार दिया। एहतजाज के दौरान तालिबात ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हिजाब के तकद्दुस के हक़ में नारे दर्ज थे। तालिबात ने मुतालबा किया कि वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए और मजहबी इक़दार और ख़वातीन के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज ओकाड़ा की प्रिंसिपल ने कहा कि हिजाब औरत की इज़्ज़त और शनाख्त की अलामत है और इसकी तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आलमी बिरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुतालबा किया कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लें। इंडिया में जो औरत की इज्जत को पमाल किया गया है, इज्जत औरत के तकद्दुस को पमाल किया गया है, हम सब लोग जो है मिलके यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पर्दा हमारे पे लाजम करार दिया है। सूरह नूर पूरी हमारे लिए उतरी है
تو اس کے لیے ہماری جو حفاظت کی جائے اور ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پہ ہم آواز بلند کرتے ہیں. ہم مسلم خواتین ہیں, ہم سب پہ پردہ لاگو ہے, اور یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ ہمارے اوپر ایسے لوگ ہیں جو ہمیں عورتوں کو جینے کا یا رہنے کا طریقے سے ان کو نہیں رہنے دیتی. جیسے وہ رہنا چاہتی ہیں ان کو آزادی نہیں دی جاتی, اور یہ بہت ہی ایک بری حرکت ہے کہ اس کا سب کے سامنے ایک عورت کا حجاب اتارا گیا, جو کہ ہم سب کے لیے بہت سی شرمندگی کا باعث ہے. انڈیا میں ہونے والے واقعہ کی ہم سب مذمت کرتے ہیں کہ یہ عورتوں کے حقوق اور تحفظ پہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے, اور ان کے لیے اس کی مذمت کرنا ہر عورت پر فرض ہے. بھارتی ریاست بہار میں مسلم خاتون کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف ننکانہ صاحب میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ خواتین ونگ کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی, جس میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. احتجاجی ریلی ہرا چوک سے شروع ہو کر میلاد چوک گول چکر پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں شریک خواتین نے مختلف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. ریلی میں شامل خواتین نے بھارتی ریاست بہار کے ایک وزیر کی جانب سے مسلم خاتون کا حجاب زبردستی اتارنے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ مسلمان خواتین کی عزت و وقار پر کھلا حملہ ہے. حجاب مسلمان عورت کی شناخت اور اس کا بنیادی مذہبی حق ہے, جس کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. شرکا کا مزید کہنا تھا کہ یہ واقعہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت, تعصب اور امتیازی رویوں کی عکاسی کرتا ہے. مظاہرین نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور مسلم خواتین کے مذہبی اور انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں. قصور میں ریسکیو 1112 پنجاب گورنمنٹ کی مہم جاری ہے. اسکول سیفٹی مہم کے تحت 5000 طلبہ و طالبات کو ٹریننگ فراہم کی جائے گی. تفصیلات کے مطابق حکومت پنجاب کی اسکول سیفٹی مہم کے تحت ریسکیو 1112 قصور کی سیفٹی ونگ نے ضلع قصور میں 5000 طلبہ و طالبات کو بنیادی تربیت فراہم کی. اس کے مقصد کے لیے ضلع بھر کی 53 اسکول و کالجز میں ٹریننگ سیشنز کا انعقاد کیا گیا, جس میں طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس مہم کا مقصد کسی بھی دہشت گردانہ حملے کی صورت میں خود کو محفوظ رکھنا, زخمیوں کی مدد کرنا, آگ بجھانے اور ہنگامی انخلاء کی عملی مشقوں کے ذریعے طلبہ و طالبات کو بنیادی تربیت فراہم کرنا ہے, تاکہ طلبہ و طالبات کسی بھی ہنگامی صورتحال میں خود کو محفوظ اور دوسروں کی مدد کر سکیں. پاک پتن میں ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کو شدید دھند میں حادثات سے بچنے اور محفوظ سفر کے لیے کن ہدایت پر عمل کرنا چاہیے, جانتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر ایوب چاولہ کی اس رپورٹ میں. سردی کے موسم میں شدید دھند میں حادثات سے بچنے کے لیے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. ڈی ایس پی ٹریفک کی جانب سے شہریوں کے لیے آگاہی مہم بھی جاری ہے. اس موقع پر ڈی ایس پی ٹریفک کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فوگی سیزن چل رہا ہے, اور اس میں جو ہے روڈ یوزرز کے لیے ہے کہ ویزیبلٹی جو ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے, بعض دفعہ زیرو بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ فوگ لائٹس جو یلو لائٹس ہیں وہ یوز کریں, اور یہ لگانی اس جگہ پہ گاڑی پہ لگانی ہے کہ زمین سے لے کے 12 انچ سے اوپر اور 24 انچ کے درمیان, اور یہ گاڑی کے سائڈ پہ لگانی ہے. ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کر کے اپنے آپ کو حادثات سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. خاص طور پر دھند کے سیزن میں فوگ لائٹس اور گاڑیوں کے آگے اور پیچھے ریفلیکٹرز کا استعمال ضروری ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ایوب چاولہ, ڈسٹرکٹ رپورٹر 5 نیوز پاک پتن. پاک پتن میں اسموگ کے ممکنہ اثرات سے نمٹنے کے لیے ستھرا پنجاب کی ٹیم متحرک ہو گئی. ضلع انتظامیہ اور ستھرا پنجاب کے اشتراک سے شہر میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا, جس کا مقصد شہریوں کو صاف ماحول کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے. طارق سجاد چشتی کی رپورٹ دیکھتے ہیں. پاک پتن میں بڑھتی فضائی آلودگی اور اسموگ کے خدشات کے پیش نظر ستھرا پنجاب کی ٹیم نے ضلع انتظامیہ کے تعاون سے شہریوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے شہر کی مختلف شاہراہوں پر واک کا انعقاد کیا. اس دوران شہریوں کو صاف ستھرے ماحول, کوڑا کرکٹ کے درست ٹھکانے لگانے اور اسموگ سے بچاؤ سے متعلق احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا گیا. آگاہی واک کا جو مقصد ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنا کہ یہ جو اسموگ کے اثرات ہیں اس کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں پمفلٹ شہریوں کے اندر تقسیم کیے جا رہے ہیں, ماسک تقسیم کیے جا رہے ہیں اور شہر کے اندر چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے. ستھرا پنجاب کی ٹیم کی طرف سے شہر کی سڑکوں کی دھلائی اور اندرون شہر صفائی کی مہم کو بھی تیز کر دیا گیا. ستھرا پنجاب کے ہم شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے واک کے ذریعے اسموگ فری ماحول کی مہم چلائی. ہم اس پر عمل کر کے
माहौल को साफ सुथरा बनाएंगे। इंतजामिया का कहना है कि बाकायदा सफाई, सड़कों की धुलाई और शहरियों के ताउन से न सिर्फ स्मोग में कमी मुमकिन है बल्कि माहौल बेहतर होने से रोजमर्रा जिंदगी पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। कैमरा टीम के साथ तारिक सजाद चिश्ती, 5 न्यूज, पाकपतन। मुल्तान के तालीमी इदारों में तलबा को महफूज खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए फूड सेफ्टी टीमें सरगर्म अमल है। फूड सेफ्टी टीमों ने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में 2 कैंटीनों का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक खानों की तैयारी में चाइना नमक और गली सड़ी सब्जियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इंस्पेक्शन के दौरान जायदुल मियाद खुराक और हशरात ज़दा खाम अशिया बरामद की गई। साफ पानी की अदम दस्तयाबी, वॉशिंग एरिया में गंदगी और सफाई के नाकिस इंतजामात पाए गए। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि तलबा को गैर मयारी खुराक सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जलालपुर भटिया में मुज़र सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस के ताउन से कार्रवाई करते हुए नाकिस और बदबूदार गोश्त सप्लाई करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान 80 किलोग्राम इंतहाई मुज़र सेहत गोश्त बरामद किया गया, जिसे कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मौके पर ही तलब कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक गोश्त का वेटरनरी स्पेशलिस्ट से तफसीली मुआयना करवाया गया, जिसमें गोश्त इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक करार पाया है। तर्जुमान का कहना है कि मुलजिमान के पास जानवरों की खरीदो फरोख्त और गोश्त सप्लाई करने से मुतालिक कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। बीमार और कम उम्र जानवरों का गोश्त तैयार करके मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान गोश्त की तरसील में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त कर ली गईं, जबकि 3 मुलजिमान को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर मुज़र सेहत खुराक के कारोबार में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हाफिजाबाद में मुझे सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों ग़ज़ाई दहशतगर्दों के खिलाफ फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए मीट सेफ्टी टीमों ने पिंडी भट्टियां और गुजरावाला रोड पर छापे मारे, जहां से 84 किलोग्राम से जायद नाकिस और बदबूदार गोश्त बरामद करके मौके पर ही तलब कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ थानों में 2 मुकदमा दर्ज और 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक पिंडी भट्टिया में गाड़ियों के जरिए मुजरे सेहत गोश्त सप्लाई किया जा रहा था, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। गुजरावाला रोड पर वाक़े एक बीफ शॉप से भी गैर मयारी गोश्त बरामद होने पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। वेटरनरी डॉक्टर्स ने तफसीली मुआयने के बाद गोश्त को मुजरे सेहत करार दिया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी ने बताया कि मुलजिमान के पास लाजमी रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। तर्जुमान का कहना है कि मुर्दा और बीमार जानवरों का गोश्त इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है, जो मैदे और जिगर के मोजी अमराज का सबब बनता है। फूड अथॉरिटी के मुताबिक जालसाज माफिया ज्यादा मुनाफे के लालच में खुराक नहीं बल्कि बीमारियां फरोख्त कर रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। फैसलाबाद में एक कार्टन फैक्ट्री में आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक फैक्ट्री में मशीन का ब्लेड टूटने से चिंगारी निकली, जिससे पुराने कपड़ों को आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 7 फायर व्हीकल्स की मदद से आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। तहम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 26 साला जमील और 46 साला असगर शामिल हैं, जो ज़िला लिया के रिहायशी थे, जबकि तीसरे मजदूर की शनाख्त 19 साला अदनान के नाम से हुई, जो ज़िला राजनपुर का रिहायशी था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को निकाल कर कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। कसूर थाना राजा जंग के इलाके हवेली खुशहाल सिंह में 4 रोज कबल लापता होने वाले 5 साला हन्नान को ताहाल बाजियाब ना करवाया जा सका। 5 साला हन्नान की फैमिली समेत अहले इलाका परेशान है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से मजीद जानते हैं। जी सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ। कसूर थाना राजा जंग की हदूद हवेली खुशहाल सिंह में 4 रोज कबल यहाँ पर 5 साला बच्चा जो हनान है वो मुबीना तौर पर अगवा हुआ। पुलिस ने जो है राजा जंग पुलिस ने जो मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन ताहाल जो है बच्चा जो वो बाजियाब नहीं करवाया जा सका। हमारे साथ इस वक्त जो है वो बच्चे के वालिद मौजूद है, पूरा अहले जो मोहल्ला अहले जो दी है वो मौजूद है, उनसे बात भी इस वाले से करते हैं। जी बताइएगा कैसे वाकया पेश हुआ और पुलिस ने क्या तावन किया अभी तक? सर, पुलिस ने तावन किया, FIR हो गई है। अब पुलिस आती है यहाँ पे दिलासे दे रही है हमें, हाँ ठीक है हम करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। रात कल हमारा एहतजाज का 30 दिन हमने सोचा जी, अब पुलिस ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। पुलिस आती है दिलासे दे के चली जाती है। अब हमारा कल हमने इरादा बनाया था सारे इलाके को अपने को इकट्ठा करेंगे और हम भरपूर तरीके से रोड पे जाएंगे, एहतजाज करेंगे
اور وہ رات کو آئے, उनको पता चला जी ये तो एहतजाज कर रहे हैं. उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं 2 दिन का हमें टाइम दिया जाए, तो आप भी मेहनत करें, हम भी कर रहे हैं. तो बहरहाल हम 2 दिन के बाद एहतजाज करेंगे, हम निकलेंगे. मेरा वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर आला साहब हैं, आईजी साहब हैं. मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द बाजियाब करवा के मेरे जो ज़िंदगी है ना उसमें सुकून आए. मेरे बच्चे परेशान हैं, मेरा इलाका परेशान है, मेरे गाँव के लोग परेशान हैं. अब मैं इससे आगे क्या कर सकता हूँ. अब मैं सुबह से शाम तक ना मैं कारोबार करने के लिए जा रहा हूँ, अपने घर पे बैठा हुआ हूँ. सारा दिन यहाँ पुलिस आती है, दिलासा देती है, चली जाती है. यहाँ करते हैं इंशाल्लाह. जी, जैसे आपने बच्चे के वालिद की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि पुलिस आती है, दिलासा देकर चली जाती है, और उन्होंने ये भी कहा अगर 2 रोज का टाइम लिया है पुलिस ने, अगर 2 रोज तक बच्चा बाजियाब ना हुआ तो अहले इलाका और हम सब जो है ना वो एहतजाज कर रहे हैं. वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म और आईजी पंजाब से उन्होंने अपील किया है कि हमारे बच्चे को जो है फौरी तौर पर बाजियाब करवाएं. डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गजनफर अली कादरी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटरी का अचानक दौरा करके तिब्बी सहूलियात और SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया. दौरे के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी और नाकिस कारकर्दगी पर मुतालिका डॉक्टरों पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया. मरीजों ने शिकायत की कि डॉक्टर्स अद्वियात और सर्जिकल सामान बाहर से मंगवाने पर मजबूर करते हैं. डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर अस्पताल स्टोर का रिकॉर्ड चेक किया गया तो अद्वियात और सर्जिकल सामान वाफिर मिकदार में मौजूद पाया गया. उसके बावजूद मरीजों को फराहम नहीं किया जा रहा. डिप्टी कमिश्नर जामशोरो ने DHO जामशोरो और सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन को मुतालिका डॉक्टरों के खिलाफ फौरी तहकीकात की हिदायत जारी की. उन्होंने एक्सरे रूम का भी दौरा किया जहां मालूम हुआ कि मशीन तवील अरसे से बंद थी जिसे अब फाल कर दिया गया है. डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मरीजों को अद्वियात बाहर से मंगवाना सरासर ज्यादती है. गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी और इंक्वायरी रिपोर्ट सूबाई वजीर को अरसाल की जाएगी. साहिवाल में प्राइवेट डॉक्टर्स ने FBR की पॉलिसियों के खिलाफ तहसील चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया. एहतजाज में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर्स और निजी क्लिनिक्स के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की. मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमती अस्पतालों में सेहत की सहूलियात न होने के बराबर हैं और हुकूमत चाहती है कि प्राइवेट डॉक्टर्स को भी इसी सूरत हाल का शिकार कर दिया जाए. PMA के सदर डॉक्टर सरफराज ने कहा कि FBR की जानिब से मरीजों और वसूल की जाने वाली फीसों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करना गैर इखलाकी है जिसका बराह रास्त बोझ अवाम पर पड़ेगा. मुजाहिरीन के मुताबिक हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियां अवाम दुश्मन हैं जिन्हें किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि इन पॉलिसियों के बाइस गरीब अवाम के लिए सेहत की सहूलियात मजीद महंगी होती जा रही हैं. एहतजाज में शरीक डॉक्टर्स ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर अपनी अवाम दुश्मन पॉलिसियां वापस ले. बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा और एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा. चनियोट पुलिस की जानिब से शहरियों के सफ़र को महफूज बनाने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं. ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक आगाही कैंप का इनेकाद किया गया. DPO डॉक्टर नवीद आतिफ, डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने शहरियों को हेलमेट के इस्तेमाल से आगाही दी और हेलमेट तकसीम किए गए. मज़ीद बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट मियां मुनव्वर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में. वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर शहरियों के सफ़र को महफूज बनाने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं. चनियोट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक आगाही कैंप का इनेकाद किया गया. DPO डॉक्टर नवीद आतिफ, डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने शहरियों को हेलमेट के इस्तेमाल के बारे में आगाही दी और हेलमेट तकसीम किए. आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए. शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं ताकि ट्रैफिक हादसा से बचा जा सके. DPO चनियोट और डिप्टी कमिश्नर का कहना है हेलमेट का इस्तेमाल हमारे बच्चे बच्चियों के लिए जो भी लाइसेंस होल्डर हैं उनके लिए किसी भी फेटल एक्सीडेंट की सूरत में खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी की कितनी प्रोटेक्शन बन सकता है वो एक अवेयरनेस उस सिलसिले में कम्युनिटी के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमारी ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स ने एक बच्चा छोटा सा एक बड़ा लेकिन पुरवकार सा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया. पब्लिक अवेयरनेस की, लोगों को बुलाया, हमारी बच्चियाँ आई, हमने उनमें भी हेलमेट की डिस्ट्रीब्यूशन की, बच्चों में भी की. उसका मकसद ये नहीं था कि ये छोटी छोटी सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको करके हम आपकी ही जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इंश्योर कर सकते हैं. वालिदैन को चाहिए कि वो कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग से रोकें ताकि उम्र भर के पछतावे से बच सकें. कैमरामैन मोहसिन अली के साथ मियां मुनव्वर हुसैन, 5 न्यूज़ चनियोट.
कैडेट कॉलेज घोटकी में 7वें सालाना पेरेंट्स डे की मुनासिबत से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक रुकने सूबाई असेंबली और चेयरमैन पेट्रोलियम डेवलपमेंट अब्दुल बारी खान थे। इस मौके पर रीजनल कोऑर्डिनेटर कमर जमान शाह, डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कंडरानी और दीगर मौजूद मेहमानों ने शिरकत की। मेहमानों का इस्तकबाल प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज घोटकी ब्रिगेडियर रिटायर्ड एमल खान और एडमिन ऑफिसर फरमान अली अरबानी ने किया। तकरीब में कैडेट्स के वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तलबा की जानिब से साइंस एग्जीबिशन, जिमनास्टिक, पीटी शो और मार्च पास्ट पेश किया गया, जिसे शुरका ने खूब सराहा। तकरीब के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए गए, जबकि मेहमान खुसूसी ने कॉलेज में नए एरोप्लान का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी और वालिदैन ने कहा कि कैडेट कॉलेज जैसे इदारे मयारी तालीम और बेहतरीन तरबियत फराहम करके तलबा को रोशन मुस्तकबिल के लिए तैयार करते हैं। पूरे सिंध की तरह सेवन शरीफ और आसपास इलाकों में भी सिंधी कल्चर डे जोशो खरूज से मनाया जा रहा है। सेवन में सकाफत के हवाले से सिंधी प्रेस क्लब सेवन में प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात अहमद सोलंकी की इस रिपोर्ट में। सेवन शरीफ का म्यूजियम लाइब्रेरी एक ऐसा तारीखी विरसा है जो सिंध की सकाफत, आसार कदीमा, रूहानी तारीख को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये म्यूजियम सेवन शरीफ की हज़ारों साल पुरानी तहजीब का आईनादार है, जहाँ मोहनजोदड़ो के दौर से लेकर हज़रत लाल शहबाज कलंदर रूह के ज़माने तक की नायाब निशानियाँ एशियाई नुमाइश के लिए रखी गई हैं। मोहम्मद मियां सुमरो साहब उस वक्त के गवर्नर थे 2002 में, उसी ने इफ्तिताह किया था। और सेवन म्यूज़ियम में हमारे कल्चर जो सिंध की सकाफत है उस लिहाज से अजरक उसके बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। और पुराने ज़माने में जो लोग कपड़ा बनाते थे उस के हिसाब से धागा कैसे बनता है और कपड़ा कैसे बनाया जाता है, उसी में जो हैं तो पुराने रली, हम सिंधी में रली कहते हैं उसको, वो रली हैं जो कढ़ाई से बनी होती है। सेवन म्यूजियम की ख़ास बात ये है कि सिंधी मशहूर सकाफत, अजरक टोपी पटको, सूफी बुज़ुर्गों के ख़त व किताबत की नादर नुस्खे, मौसीकी की आलात और सिंधी सकाफत मलबूसात भी नुमाइश किए गए हैं। ये म्यूज़ियम सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सिंध की रूहानी विरसा का मुहाफ़िज़ है। कैमरामैन टीम के साथ रिपोर्टर वज़ीर अहमद सोलंकी, चैनल 5 न्यूज़। आरिफ वाला के निजी कॉलेज में मुल्क की सकाफत को उजागर करने के लिए सकाफती मेला सजाया गया, जिसमें कॉलेज की तालिबात ने तमाम सूबों की सकाफत को उजागर करने के लिए खूबसूरत स्टॉल्स लगाए और सकाफती लिबास पहनकर तमाम सूबों की नुमाइंदगी भी की। इस हवाले से हाजी मोहम्मद अयूब चौधरी की तफसीली रिपोर्ट देखिए। आरिफ वाला के निजी कॉलेज में मुल्क की सकाफत को उजागर करने के लिए सकाफती मेला सजाया गया, जिसमें कॉलेज हाजा की तालिबात ने तमाम सूबों की सकाफत के हवाले से खूबसूरत स्टॉल्स लगाए और सकाफत पर मबनी लिबास पहने। आज के सकाफती मेले में हमें पाकिस्तान के तमाम सूबों के बारे में पता चल रहा है और हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और अच्छा किया मैनेजमेंट ने जो हमारे लिए ये कल्चर फेस्टिवल अरेंज किया। सकाफती मेले में आकर हमें बहुत मज़ा आ रहा है और हमें पाकिस्तान के तमाम सूबों के बारे में मतलब उनका कल्चर मालूम हो रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है। हर जगह पे ऐसे मेले होने चाहिए ताकि बच्चों को उनकी सकाफत का इल्म हो सके। तालिबात का कहना था कि सकाफती मेले से उनको पंजाब के साथ साथ दूसरे सूबों की सकाफत के हवाले से भी आगाही मिल रही है। इस सकाफती मेले में आने वाले न सिर्फ लुत्फानंदोज हो रहे थे बल्कि उनको हमारी सकाफत के हवाले से आगाही भी मिल रही थी। सरगोदा पाकिस्तान भर में अपनी सौगात किन्नू की वजह से एक मुनफरिद पहचान रखता है। जायके, मिठास और खुशबू में लाजवाब सरगोदा का किन्नू न सिर्फ मुल्की मंडियों बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी मांग रखता है। ब्यूरो चीफ सरगोदा अंबर रजा से मजीद जानते हैं। जी अंबर, अपडेट कीजिएगा। सरगोदा का किन्नू अपनी मिठास, रस भरे जायके और कुदरती खुशबू की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इसको पसंद किया जाता है। मौसम सरमा शुरू होते ही जो है इसकी काश्त किन्नू की बिल्कुल तैयार हो जाती है। अभी जो काश्तकार हजरात हैं, एक्सपोर्टर हजरात हैं, उन्होंने किन्नू की तड़वाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ से किन्नू तोड़ करके जो है सिट्रस हाउस में पहुंचाए जाते हैं, वहां पर इसको सफाई की जाती है और इसको दुनिया भर में जो है एक्सपोर्ट किया जाता है।
جس سے سالانہ لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر جو ہے زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے. ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو کنو میں قدرتی طور پر وٹامن سی شامل ہوتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی جو ہے وہ ضروری بھی ہوتے ہیں. مزید ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر سرگودا کی سوگات کنو کو اگر یہ نہ کہا جائے کہ یہ صرف ایک پھل نہیں ہے بلکہ سرگودا اور پاکستان کی پہچان ہے تو غلط نہیں ہوگا. جی. پاک پتن میں صفاق بیوی نے آشنا کے ساتھ مل کر شوہر کو قتل کر ڈالا. پولیس نے صفاق ملزمہ کو گرفتار کر لیا. پاک پتن کے گاؤں 75 ڈی میں ناجائز تعلقات کا شاخسانہ تھا. پولیس نے مقتول کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزمہ معراج بی بی کو گرفتار کر لیا. ایف آئی آر کے مطابق شوہر اشفاق نے بیوی کو ناجائز تعلقات استوار کرنے سے منع کیا تو بیوی نے اپنے آشنا عاصم کو گھر بلا کر شوہر کے سر پر ڈنڈے کے وار کر کے قتل کر دیا. عارف والا میں ایک المناک ٹریفک حادثہ پیش آیا. گاؤں عباسی ای بی میں موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی کے درمیان تصادم ہوا جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار چچا اور بھتیجا ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. جاں بحق ہونے والوں میں 16 سالہ زین العابدین اور 1 سالہ ننھا معصوم بھتیجا شامل ہے. حادثے کے بعد علاقے میں سوگ کی فضا چھا گئی. ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو تحویل میں لے کر قانونی کارروائی مکمل کی. شیخو پورہ میں دھند کی وجہ سے مختلف حادثات میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہو گئے. رضا چوک بائی پاس روڈ پر بس مزدہ سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہوئے جبکہ سرگودا روڈ فاروق آباد میں بس موٹر سائیکل اور کار سے ٹکرائی جس میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہوئے. قلعہ ستار شاہ اسٹاپ پر بس اسکوٹی سے ٹکرا گئی. حادثے میں 3 افراد زخمی ہوئے. ریسکیو کنٹرول نے فوراً ایمرجنسی گاڑیوں کو جائے حادثہ پر روانہ کیا. ریسکیو امدادی ٹیموں نے موقع پر فرسٹ ایڈ فراہم کی. زیادہ زخمیوں کو اسپتال شفٹ کیا اور جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں کو پولیس کے حوالے کر دیا. کبیروالا عبدالحکیم حویلیہ سے کراچی جانے والی ہزارہ ایکسپریس کی ایک بوگی عبدالحکیم ریلوے اسٹیشن کے قریب پٹری سے اتر گئی. واقعے کے باعث اپ اور ڈاؤن سائٹ پر ٹرینوں کی آمد و رفت عارضی طور پر متاثر ہو گئی. حادثے کے بعد ریلوے حکام موقع پر پہنچ گئے اور بوگی کو پٹری پر واپس لانے کا کام شروع کر دیا گیا. خوش قسمتی سے واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی تاہم ٹرینوں کی تاخیر کے باعث مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مرمتی کام مکمل ہوتے ہی ٹریفک کو بحال کر دیا جائے گا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز.